Important MCQ. In Young's experiment, distance between the two slit is 0.28 millimeter. Between two slit means small d is equals to 0.28 millimeter. Distance between the slit and the screen means capital D is 1.4 meter. If the distance between central bright fringe and the third bright fringe is 0.9 centimeter, so 0.9 centimeter, distance between the central bright fringe to the third bright fringe is this one. Wavelength of the light used is to be find out. तो जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करते जाएंगे इनिशियल के कुछ एमसीक्यू में मैं आपको फॉर्मूला के साथ एक्सप्लेन करूंगा, देन सेम कंडीशन आएगी तो उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला पुट डाउन कर देंगे. तो हियर देखो, एज पर द थियरी इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, two slit is like this and one screen is in front of the slit. Here on the screen central bright fringe is there, central bright fringe, then first bright fringe, then second bright fringe, then third bright fringe is there. This one is a central bright fringe. This one is a first, this one is a second, this one is a third. So bright fringe માટેનું ફોર્મ્યુલા શું હતું? બ્રાઇટ ફ્રિંજ માટેનું ફોર્મ્યુલા શું હતું? સિમ્પલ કન્ડિશન વાઇઝ આપણે અહીંયા જોઈશું કે બ્રાઇટ ફ્રિંજ માટેનું ફોર્મ્યુલા x3 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ થર્ડ બ્રાઇટ ફ્રિંજ માટેનું ફોર્મ્યુલા હતું n લેમ્બડા કેપિટલ D divided by small d. Means distance from central bright fringe to the third bright fringe is x3. The formula of x3 is equals to n lambda capital D by D. This one is the simplest formula you should remember. Means from central bright to first bright hoy n equals to 1, so first bright. If n equals to 2, so second bright fringe. Here third bright fringe is there, so x3 is equals to, in place of n we should place 3. So formula for that, x3 is equals to 3 lambda capital D divided by small d. But in question we have to find out lambda, so lambda को सब्जेक्ट बनाते, lambda is equals to x3 into small d divided by 3 into capital D. x3 means distance of third bright fringe from the central bright is of 0.9 centimeter. We have to convert in either meter or angstrom, whatever we can. So 0.9 into 10 raised to minus 2. Small d is a 0.28 into 10 raised to minus 3, because millimeter to हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, and divided by 3 into capital D means 1.4 meter. After all simplification of all these things, we get answer 6 into 10 raised to minus 7. Minus 7. So we want to convert it as a angstrom. So 6 into 10 raised to minus 3 into 10 raised to 3 into 10 raised to minus 7. We convert it in the angstrom. तो देखो यहाँ पे 6 into 10 raised to 3, so कितना हो जाएगा
6000 इंटू 10⁻⁻7 एंड -3 तो हो जाएगा 10⁻10, तो -10 है तो डेट वन इज बिकम एंगस्ट्रॉम. 6000 एंगस्ट्रॉम इज द करेक्ट आंसर. दिस वन इज द फर्स्ट एमसीक्यू एंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कोई भी ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल ब्राइट से कितने डिस्टेंस पे होती है उसका फॉर्मूला है एन लैम्बडा कैपिटल डी बाई टी. जैसे जैसे फॉर्मूला आते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ. देन आफ्टर वेन एवर सेम फॉर्मूला इज देयर सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट वन. राइट है यहाँ पे. नाउ सेकंड वन, पोलराइजर इज नॉट देयर सो उसके एमसीक्यू हम अभी स्किप करते हैं. थर्ड वन, light of wavelength lambda is incident on the slit of a width d. The resulting diffraction pattern is observed on screen placed at a distance capital D. So slit distance is a means slit width equals to small d. The linear width of the central maximum is equal to the width of the slit. સેન્ટ્રલ મેક્સિમમની જે લિનિયર વિથ છે એ કેટલી છે? સ્મોલ ડી જેટલી. અગેન જોજો અહીંયા, અગેન यहाँ पे ध्यान रखो, लिनियर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम की लिनियर विथ कितनी है? इक्वल टू द विथ ऑफ द स्लिट. मीन्स सेंट्रल मैक्सिमम की जो लिनियर विथ है of central maximum is equals to small d is equals to small d. तो अभी फॉर्मूला क्या है हमारे पास नॉर्मल कंडीशन कि सेंट्रल मैक्सिमम जो है उसके लिनियर विथ का फॉर्मूला क्या है और एंगुलर विथ का फॉर्मूला क्या है. सो एंगुलर विथ इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगुलर विथ की बात करते हैं तो देखो पहले नॉर्मल कंडीशन में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ पे एक स्लीट है, इसकी जो विथ है वो स्मॉल डी गिवन है. यहाँ पे एक स्क्रीन होगी, स्क्रीन के ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा सबसे पहले होगा, सेंट्रल मैक्सिमा देन फर्स्ट मैक्सिमा देन सेकंड मैक्सिमा, सिमिलरली फर्स्ट मैक्सिमा देन सेकंड मैक्सिमा. यहाँ पे सेंटर से देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे जाएगी और एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो इसको हम बोलेंगे थीटा, इसको हम बोलेंगे थीटा. ये जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी जितना है. तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम से फर्स्ट मिनिमम तक का डिस्टेंस जो हम फाइंड आउट करते हैं उसके बेसिस पे जो फॉर्मूला आता है, थीटा का फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ. थीटा इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल डी. एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, इसको जैसे हमने एक्स ले लिया सो आर्क बाय रेडियस बन गया. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस. थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय डी. अब सेकंड कंडीशन, 2 थीटा जैसे हमें लेना होगा क्योंकि लिनियर विथ लेनी है. लिनियर विथ कितनी होगी? ये टोटल मिला के लिनियर विथ हो जाएगी, यहाँ से यहाँ का ये लाइन पूरी हो जाएगी तो वहां पे आ जाएगा 2 थीटा. सो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय कैपिटल डी. 2x डिवाइडेड बाय कैपिटल डी. सो 2 थीटा का वैल्यू मिल गया. 2 थीटा इज अ एंगुलर विथ, इज अ एंगुलर विथ. अब एंगल पर से हमें फाइंड आउट करना होगा लिनियर विथ. तो एंगल इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है हमारे पास? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस. यहाँ पे एंगल की जगह पे हम सोचते हैं, फिर से थोड़ा डायग्राम बना के आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ये स्लिट है, यहाँ पे कोई सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ से एक कंडीशन इस तरफ जा रही है, एक कंडीशन इस तरफ लाइन जा रही है, एंगल 2 थीटा है. ये डिस्टेंस हमें आर्क फाइंड आउट करना है और यहाँ पे जो कंडीशन है उसको हम डी बोलते हैं. तो चलो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस होगा. सो आर्क इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एंगल इंटू रेडियस.
एंगल इंटू रेडियस बन जाएगा कंडीशन। देखते हैं फॉर्मूला वहां पे कितना बनता है। एंड इसके हिसाब से जैसे x का फॉर्मूला हम पुट डाउन करेंगे डिस्टेंस कितना होता है, तो x का फॉर्मूला भी है वही कंडीशन। 1 सेकंड यार, 2 λ/d जो कंडीशन फॉर्मूला था, साइन थीटा है 1 सेकंड, साइन थीटा एंगल इज इक्वल्स टू d/थीटा, d साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्बडा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू λ/d, तो थीटा इज इक्वल्स टू λ/d आएगा एंड 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 λ/d होगा। ओके चलो 1 सेकंड, थोड़ा मिस्टेक था हमारा, हमने जो x लिया था उसकी जगह पे थोड़ा करेक्शन करना है हमें, फिर से करवाता हूँ। देखो यहाँ पे अगेन पूरा ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। अब सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है, तो सेंटर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन जाने देते हैं और यहाँ पे जो लाइन एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा। तो उसका डिस्टेंस कितना है वो हम पहले फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एंगल जो है थीटा कर देते हैं। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए फॉर्मूला है डी साइन थीटा, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेम्बड़ा, और साइन थीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला कितना हो जाएगा, लेम्बड़ा डिवाइडेड बाय डी बन जाएगा। एंगल छोटा होगा तो साइन थीटा की जगह पे हम थीटा लिख देंगे, तो लेम्बड़ा बाय डी बन जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा जो मिनिमा है वहाँ का डिस्टेंस भी ऐसे थीटा बन जाएगा, सेम टू सेम होगा। तो टोटल हमें कितना एंगल फाइंड आउट करना होगा, 2 थीटा का फाइंड आउट करना है हमें। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्बडा डिवाइडेड बाय डी। अब सेकंड कंडीशन, जैसे हमने यहाँ पे एंगल फाइंड आउट कर दिया तो इसको बोलते हैं हम एंगुलर विथ बोलते हैं, एंगुलर विथ। अब लीनियर विथ फाइंड आउट करना है, सो फॉर्मूला है हमारे पास एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। तो आर्क इज इक्वल्स टू लीनियर विथ उसको बोलेंगे इक्वल्स टू एंगल इंटू रेडियस। एंगल है हमारे पास 2 थीटा एंड रेडियस कितना है, तो स्लीट से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है उसको बोल देंगे रेडियस, सो कैपिटल डी बन जाएगा 2 थीटा इंटू कैपिटल डी। तो यहाँ पे लीनियर विथ की जगह पे 2 थीटा की जगह पे 2 लैम्बडा डिवाइडेड बाय डी, ऊपर रहेगा कैपिटल डी। तो लीनियर विथ कितना हो जाएगा 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाई डी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, लीनियर विथ इज इक्वल्स टू 2 लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, वो वैल्यू हमें गिवन है स्मॉल डी के जितना गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कैपिटल डी, फाइंड आउट करना है। कैपिटल डी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल डी को सब्जेक्ट बना देते हैं, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लैम्बडा, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लैम्बडा इज द करेक्ट आंसर हो, मीन्स फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ध्यान रखो फिर से, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा लेके हमने स्टार्ट किया, पूरी थियरी के जैसे डिराइव कर दिया, उसके बेसिस पे एंगुलर विथ फाइंड आउट किया 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा बाई डी। देन आफ्टर एंगुलर विथ के ऊपर से लीनियर विथ फाइंड आउट किया, और लीनियर विथ जो हमें गिवन है स्मॉल डी, तो उसके बेसिस पे हमने सिंप्लीफाई किया। ओके ए भी याद रखते ना, ए सिंगल स्लिट वाला यंग्स एक्सपेरिमेंट है, इसमें डिफ्रैक्शन होता है। फर्स्ट वाला जो एमसीक्यू था डेट वन इज द इंटरफेरेंस के लिए था। ओके तो फर्स्ट मिनिमा के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा या यहाँ पे वो आपको याद रखना है, लैम्बडा डी बाई डी। फर्स्ट मिनिमा के लिए जो भी फॉर्मूला आता है उसमें फॉर्मूला होगा लैम्बडा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, मैच द कॉलम 1 एंड 2। तो मैच करना है,
उसमें कुछ टर्म आपको नहीं करनी है, जो इंटरफेरेंस एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसका आंसर मुझे बता दो। इंटरफेरेंस का क्या आएगा? इंटरफेरेंस इज इक्वल्स टू, मीन्स फर्स्ट का कोहेरेंट सोर्सेज में होता है वो तो फर्स्ट टू फर्स्ट ही है, 1 to p। देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या था? म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin c। ये दो आपको याद रखने हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड कोहेरेंट सोर्सेज। आगे देखते हैं। अभी पोलरोइड का एमसीक्यू नहीं करना है हमें। देन 7th one, what should wavelength of a light to get fifth bright fringe at a point where third bright fringe is obtained using 700 nanometer in the Young's experiment। तो फिर से क्वेश्चन समझो शांति से। व्हाट शुड बी द वेवलेंथ? सो वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है टू गेट फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। तो x5 हमें लेना है। x5 का फॉर्मूला क्या था ब्राइट फ्रिंज के लिए? तो 5 लेम्बड़ा, फर्स्ट वाला एमसीक्यू देखो जो हमने करवाया था वहां पे, लेम्बड़ा डी बाय स्मॉल डी, 5 लेम्बड़ा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, लेकिन लेम्बड़ा 1 हम लिखेंगे यहाँ। ये ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे मिलनी चाहिए? एट अ पॉइंट वेयर थर्ड ब्राइट फ्रिंज। थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लिखेंगे x3 इज इक्वल्स टू 3, लेकिन लैम्बडा डिफरेंट होगा, लैम्बडा 2 कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन्ड यूजिंग वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर, मीन्स लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू lambda 2 is equals to 700 nanometer। ओके अब ये दो फॉर्मूला में से देखो चेंज क्या होता है। x5 इज इक्वल्स टू x3 हमें लिखना है, तो x5 सेम डिस्टेंस में मिलेगा, x3 पे मिलेगा, तो 5 लेम्बडा 1 कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, सामने करेंगे 3 लेम्बडा 2 कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी कट हो जाएगा, तो फॉर्मूला बचेगा 5 लेम्बडा 1 इक्वल्स टू 3 लेम्बडा 2, और लेम्बडा 1 जैसे हमें फाइंड आउट करना है तो 3 इंटू लेम्बडा 1, लेम्बडा 1 कितना गिवन है? 700 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर आएगा लेम्बडा 1 इज इक्वल्स टू 420 नैनोमीटर। ओके 20 मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल फॉर्मूला है ब्राइट फ्रिंज का, आपको एक बार याद रखना है। ब्राइट फ्रिंज का क्या हो जाएगा? ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला एन लेम्बडा डी बाय डी। पोलराइजेशन नहीं करना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। ओके देन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो यहाँ पे इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the intensity at point P on the screen is half the maximum intensity in the interference pattern. The wavelength of the light used is lambda and d is the distance between the slit. Angular separation between the point P and the center of the screen is। तो इंटेंसिटी के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है पहले, तो I इज इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर
के R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला में याद रखना है। वेयर जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी कितनी मिल रही है, हाफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम मीन्स I0, तो I इज इक्वल्स टू I0 बाई 2 इज इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर, एक की जगह पे आएगा 2 पाई बाई लेमड़ा, एंड R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 मीन्स पाथ लेंथ हो जाएगा। पाथ लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, पाथ लेंथ इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा, जो मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा क्या, I0 कट हो जाएगा, सो बचेगा 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर, 2 कट हो जाएगा, सो पाई डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय लेमड़ा, इतनी कंडीशन बचेगी। 1/2 इज इक्वल्स टू पाई डी साइन थीटा। कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर की जगह पे हमने स्क्वायर रूट कर देना है, स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना बचेगा, स्क्वायर रूट करें तो क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल्स टू कॉस पाई डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय लेमड़ा। अब कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है, कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है, तो होगा कॉस पाई बाय 4 इक्वल्स टू कॉस पाई डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय लेमड़ा। तो कॉस कॉस निकली जैसे, थीटा सेम तसे, सो पाई बाय 4 इक्वल्स टू पाई डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय लेमड़ा। पाई भी निकली जैसे साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेमड़ा 4 लेमड़ा डिवाइडेड बाय डी। ओके ओके, 4 नीचे आएगा 4D, एंड थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स लेमड़ा डिवाइडेड बाय 4D। दिस वन इज द आंसर। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स लेमड़ा डिवाइडेड बाय 4D means C is the correct answer. Now देखते हैं नेक्स्ट वन। देखो, द width of fringes is blanks as Young's double slit experiment moves from air to water। जैसे जो पूरी सिस्टम है उसको हम एयर में से वाटर में ले जाते हैं, तो जो फ्रिंज जो होती है उसकी विथ होती है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो इसका आंसर है डिक्रीज होगी। कैसे, तो डिक्रीज मीन्स जो एक्स बार जो फ्रिज के लेंथ है दैट वन इज डिपेंडेंट ऑन द लेमड़ा बाय 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स लेमड़ा इंक्रीज होगा, लेमड़ा गेट्स इंक्रीज width of fringe इंक्रीज, लेमड़ा डिक्रीज होगा तो ए भी डिक्रीज हो जाएगी। अब लेमड़ा में क्या चेंज होता है वो देखते हैं। एयर में से वाटर में जाएगा, एयर में से वाटर में जाएगा तो आपको मालूम है कोई सिंगल मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाते तो ओनली फॉर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, बट वेवलेंथ डिफरेंट होती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो वेवलेंथ होती है वाटर के अंदर डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि विथ ऑफ द फ्रिंज गेट्स डिक्रीज, बिकॉज लेमड़ा पे डिपेंडेंट है इसके लिए। देन आफ्टर, what will be the angle of first order maxima obtained by Fraunhofer diffraction by single slit using light of wavelength 500 नैनोमीटर। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला कौन सा था, तो देखो सिंपल कंडीशन में पूरा डिराइव करके बता रहा हूं, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू फॉर मैक्सिमा 2n+1
lambda by 2. 2n plus 1 lambda by 2. This one is for maxima. And d sin theta equals to n lambda. This one is for minima. ओके, अगेन डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ मैं आपको. स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, इस तरफ भी ऐसा होगा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा. अब देखो पूरी कंडीशन बता रहा हूँ आपको. ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, इसको बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, इसको बोलते हैं सेकंड मैक्सिमा. चलो, सेंट्रल मैक्सिमा से इसका डिस्टेंस जैसे हमें फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो ये वाला, ये जो मैक्सिमा वाला फॉर्मूला है वहाँ पे n इक्वल्स टू 1 2 3 वैसे आप अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड मैक्सिमा मिलेगा. सेम कंडीशन यहाँ पे हमें फर्स्ट मैक्सिमा लेना है, ऑर्डर टू फर्स्ट मैक्सिमा, तो n की जगह पे 1 लिखेंगे. सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, n की जगह पे 1 लिखेंगे, 2 प्लस 1, सो 3 लेमड़ा डिवाइडेड बाय 2d बन जाएगा. 3 लेमड़ा डिवाइडेड बाय 2d होगा. यहाँ पे वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं. लेमड़ा की वैल्यू हमें गिवन है, लेमड़ा की जगह पे क्या कर देंगे, 500 नैनोमीटर. 3 इंटू 500 का मीटर होगा 10⁻⁻, नैनोमीटर है ना, सो 9 हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्लिट की विथ हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, जो भी विथ गिवन होगी तो हम डायरेक्टली पुट डाउन कर देंगे. व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा ऑब्टेन बाय फ्रैंकफर्ट डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ. ओके, तो ये कंडीशन इतनी रहेगी. स्मॉल डी हमें गिवन नहीं है, इफ गिवन होता है तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट डाउन कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट होगा. ओके, क्वेश्चन में रिमेनिंग है, मिसिंग है वो. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हेलो, डी यहाँ पे रख देंगे, जो भी आंसर में क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसके बेसिस पे हमें आंसर मिल जाएगा यार. चलो, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस कितना होगा, कितना होगा बोलो. देखो, नॉर्मली ऐसे रोटेट पूरा घूमते हैं तो कितना होता है, 2 पाई होता है. 2 पाई की जगह पे क्या होगा, एक लेमड़ा जितना पार्ट डिफरेंस होगा, मीन्स 2 पाई फेज इज इक्वल टू लेमड़ा पाथ. याद रखना है, सर्कुलर में जैसे घूमते हैं तो उसको फेज बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन में जाते हैं तो उसको पार्ट डिफरेंस बोलते हैं. सर्कुलर में 2 पाई के सामने कितना होता है, लेमड़ा होता है. सो 100 पाई इज इक्वल टू हाउ मच, क्लियर है ना. पार्ट डिफरेंस कितना होगा, सो 100 पाई लेमड़ा डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई पाई कट हो गया यहाँ पे 50, सो 50 लेमड़ा. लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, वन सर्कल घूमते हैं तो वहां पे फेस होता है 2 पाई, एंड स्ट्रेट में कितना होता है, तो लेमड़ा जितना होता है. देन आफ्टर अगेन फिर से अच्छा आ गया क्वेश्चन, देखो यहाँ पे. In arrangement of Young experiment, the central fringe of interface pattern produced by a light wavelength of 6000 angstrom. So the central fringe is superimposed to fourth order of dark fringe after a glass plate of refractive index 1.5 is introduced. The thickness of the glass plate would be blanks. देखो, ये जो एमसीक्यू है ना, सेम टू सेम एज एक न्यूमेरिकल था हमारी ओल्ड बुक में.
तो वहाँ पे जो फॉर्मूला डिराइव किया था पूरी थियरी में, वो फॉर्मूला मैं आपको एक बार डायरेक्टली बता रहा हूँ थिकनेस फाइंड आउट करने का, उसके बेसिस पे आगे हम जाएंगे। और आप वो फॉर्मूला याद रखो पूरा न्यूमेरिकल की जगह पे, तो इजी रहेगा। तो थिकनेस ऑफ द प्लेट का फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं पहले। थिकनेस ऑफ प्लेट इक्वल्स टू, थिकनेस को हम टी लिखते, टी इज इक्वल्स टू एक्स डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी डिवाइडेड बाय इंटू म्यू माइनस वन। राइट है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? ओके लेकिन हमें x यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट। तो x के लिए यहाँ पे क्या बताया है, x के लिए कंडीशन क्या गिवन है, फोर्थ डार्क फ्रिंज या कौन से गिवन है, फोर्थ डार्क फ्रिंज कहाँ पे मिलता है, फोर्थ डार्क फ्रिंज को मिलता है। तो फोर्थ डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला कौन सा था, n इज इक्वल्स टू, कंडीशन के हिसाब से लिखते हैं तो देखो एक्स टी बाई डी या फिर x इक्वल्स टू 2n माइनस वन लेमड़ा बाय 2 इंटू डी बाय डी, मीन्स लेमड़ा डी बाय डी। यहाँ पे फोर्थ वैल्यू लिखते हैं n इज इक्वल्स टू फोर्थ, डार्क है इसकी वजह से। सो क्या आएगा, फोर्थ 8 माइनस वन 7, 7 लेमड़ा डी डिवाइडेड बाय 2d, 7 लेमड़ा डी डिवाइडेड बाय 2d आंसर आ जाएगा। कह रहे यहाँ तक। अनदर कंडीशन से देखें हम तो 2n प्लस वन लेना होगा, यदि हमें 2n प्लस वन लेमड़ा बाई डी, तो n की जगह पे जो हमने 4 लिया उसकी जगह पे 3 लेके करना पड़ेगा, 3 6 और 7। as if we want to take formula x equals to 2n plus 1 lambda d divided by 2d, so n equals to, we should take 3 because here starting from n equals to 0 1 2, and here if minus is there starting from 1 2 3 is there. okay, तो चलो एक कंडीशन हमें मिल गया x की जगह पे, x जगह पे फॉर्मूला लिख देते हैं 7 लेमड़ा कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2d इंटू स्मॉल d डिवाइडेड बाय d इंटू म्यू माइनस वन। तो स्मॉल d कैपिटल D कट हो जाएगा, सो t इज इक्वल्स टू 7 लेमड़ा डिवाइडेड बाय 2 म्यू माइनस वन। अब म्यू की वैल्यू गिवन है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू इज इक्वल्स टू 1.5, लेमड़ा इज ऑल्सो गिवन, lambda is also given 6000 angstrom. So after putting this value, we obtained answer is a 4.2 into 10 to minus 6. This is the correct answer of this condition. तो फॉर्मूला आपको याद रखना है x d डिवाइडेड बाय कैपिटल D इंटू म्यू माइनस वन। ओके थैंक यू, आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।